Hello students, how are you? Now this is my seventh part of mensuration problem based on surface areas, and we have done these types of questions earlier also, and again some of the questions again their surface areas on surface areas. Now let us come to the first question. Now first question is, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. मतलब हमारे पास एक मेडिसिन का कैप्सूल है and the shape of the medicine capsule is cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. कैसी शेप है उसकी? एक हमारा कैप्सूल है हेमिस्फेरिकल शेप में जिसके साथ दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हमारे साथ में लगे हुए हैं. The length of entire capsule is 14 millimeter and the पूरी जो लेंथ है एंटायर कैप्सूल की वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है और इसका जो डायमीटर है कैप्सूल का दैट इज 5 मिलीमीटर. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इन दिस एक कैप्सूल है, सिलेंड्रिकल शेप है बीच में और दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है जो दोनों एक दूसरे सिलेंडर के साथ स्टक हो रखे हैं और द टोटल लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 millimeter. The entire length of the capsule is 14 millimeter and the radius and the diameter is given. ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, whether the radius is given or diameter is given. And the diameter of the capsule is 5 millimeter. It means the whole of this diameter is 5 millimeter. If it is 5, then half of it will be 2.5 and 2.5. So we know the radius and height of a हेमिस्फेरिकल पार्ट इज ऑलवेज सेम. तो इसमें हेमिस्फेयर का जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो 2.5 और हाइट भी कितनी है? 2.5. जस्ट लुक एट द सोल्यूशन नाउ. कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फिगर बनानी है. फिगर में मैंने क्या बनाया? एक हेमिस्फेयर बनाया, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स इसके साथ स्टक हो रखे हैं. ठीक है. आफ्टर दिस द टोटल लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल इज 14 millimeter and the diameter of the hemispherical part is 5. And the half of 5 is, diameter is 5 millimeter. We know the diameter is 5 millimeter. It is already given. Then radius will be half of 5, that is 2.5 millimeter. Means the radius of this part is 2.5 mm. And we also know, हमें ये भी पता है कि जितना रेडियस होता है हेमिस्फेयर का उतना ही उसका क्या होता है? हाइट होता है. The radius and height of a hemispherical part are always same. In the same way, this is also 2.5 millimeter and the height of this part is also 2.5 millimeter. And if you want to find the height of the cylindrical part or length of the cylindrical part, what we have to do, the entire length is 14 millimeter. 14 millimeter में से हम 2.5 यहाँ से and 2.5 यहाँ से, 2.5 and 2.5 becomes 5. तो 14 minus 5 कर देंगे, it will be equal to 9 millimeter. Means the length of the cylindrical part is 9 millimeter and the radius of cylinder as well as for hemisphere is same, that is 2.5 and the entire length is 14 millimeter. What we have to find? We have to find its surface area. Surface area means we have to find its total surface area. अब इसमें हमें क्या निकालना है? total surface area निकालना है. क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब देखो इसमें ये जो पार्ट है, this part is common of cylinder as well as of hemisphere. ये वाला जो पार्ट बीच में बना हुआ, this is common part of cylinder as well as of hemisphere. तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. तो whenever we have to find the total surface area of this capsule, what we have to do? We have to find the curved surface area of cylindrical part and curved surface area of two hemispherical parts. Therefore, you will write here surface area of capsule will be equal to what? Curved surface area of cylinder plus curved surface area of, how many hemispheres we have with here? 2 hemispheres. हमारे पास 2 hemispheres हैं जो किसके साथ लगे हुए? सिलेंडर के साथ लगे हुए. And now the curved surface of cylinder formula must be clear. तो curved surface of cylinder is 2 pi RH and the curved surface area of 2 hemispheres, we have 2 hemisphere, one curve, one का कितना होता है? Curved surface area 2 pi r square. We are writing 2 here because we have 2 hemispheres. Now it is 2 pi r h plus 2 to the 4 pi r square. After this step you can take common.
2 pi r हम कॉमन ले सकते हैं. आफ्टर दिस यू कैन राइट h प्लस 2r. ठीक है, 2 pi r कॉमन ले गया, h यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 2 2 होता है एंड 1 r इज लेफ्ट, तो यू कैन राइट 2r. आफ्टर दिस स्टेप just put the values. 2 pi is 22/7, r is common, that is 2.5. you can also write 2.5 की जगह पे you can also write 5/2. मतलब 2.5 की प्लेस पे we can write 5/2. अगर 5/2 लेते हैं your calculation becomes more easier. Okay, after this what is h? H means h is height of the cylindrical part, that is 9 plus 2r. what is r? 5/2. we are taking r in this form. We are taking r in this form so that our calculation becomes more easier. After this 2 11s are, this can be cut. 11 2s are 22. 22 को 5 से करेंगे. You will be getting 110/7 and this 9 and 5 becomes 14 and 7 2s are 14. The answer is 220 millimeter square. This is your answer. देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया. कॉमन लेने से क्या हुआ, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई ओनली वंस. अगर हम अलग अलग इसको करते तब भी आंसर आ जाता, बट इट विल टेक मच मोर टाइम. तो इसलिए हमारा यहाँ पे 2 पाई आर लेने से हमारा कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है. एंड आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ वी हैव डन दिस. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2, first of all ये सबको समझ में आ गया होगा. now in question number 2 what we have to do, now a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a cylinder. एक wooden article बनाया जाता है, was made by scooping out a hemisphere. एक wooden article बनाया जाता है. How it is made? By scooping out a hemisphere from each end of a cylinder. देखो इसमें ends लगे हुए थे, इसमें हमने scoop कर दिया, तो इसमें से this question is reverse of the question which we have done. मतलब reverse भी नहीं कह सकते, it is same as question number 1 we have done, जो अभी किया हमने. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder. If the height of a cylinder is 10 centimeter, the total height of a cylinder is 10 centimeter and the base radius is 3.5 and the base radius is 3.5. स्पीकर को थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं. टू हेमिस्फेरिकल्स हमने यहाँ से स्कूप आउट कर लिए and the radius is 3.5 centimeter. What we have to find? We have to find the total surface area. अब देखो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा फिगर ऐसा था कि हमारा कैप्सूल था और यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए थे. ठीक है, और अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे हमने 2 हेमिस्फेरिकल जो है हेमिस्फेरिकल स्कूप्स इसमें से निकाल लिए. तो जब हमने ये निकाल लिए तो ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया एंड अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट वी कैन सी. इसमें भी हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा था पर बाहर की तरफ था, इसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है पर ये अंदर की तरफ है. इसी तरह से यहाँ पे ये पार्ट बाहर की तरफ दिख रहा था और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें अंदर की तरफ दिख रहा है. द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल. क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे A wooden article जो है was made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder. मतलब सिलेंडर में से 2 hemispherical ends हमने scoop out कर लिए, उसमें से निकाल लिए. Now it means you are getting depression, hemispherical depressions we are getting here, and now we have to find its total surface area of this wooden article. अब देखो total surface area जो होता है, surface area का मतलब होता है जो चीज आपको दिखाई दे रही है और the thing which you can touch and the thing which you can paint, the area which you can paint. किस किस को पेंट कर सकते हो? तो you can paint the inner curved surface area of this, you can paint the outer curved surface area of a hemisphere. मतलब उसका एरिया निकालना है. तो total surface area of wooden article will be equal to curved surface area of cylindrical part, cylinder लिख सकते हैं, plus curved surface area of 2 hemispheres. Again the same thing is coming with us.
तो वही चीज आ रही है जो हमारी पहले आई थी. तो आफ्टर दिस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है एंड 2 हेमिस्फेयर्स हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर. मतलब अंदर हो या बाहर हो फॉर्मूला आपका एक ही लग रहा है. तो 2 पाई आर एच प्लस 2 आर. आफ्टर दिस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर. नाउ 2 पाई 22/7. R is 3.5. It can be written as 35/10. फ्रैक्शन में लेना ज्यादा इजी रहता है. Then what is H? 10. And what is R? Again 35/10. This can be 2 5s, 5 7s. After this यहाँ पे कुछ कट रहा है आपका. 7 1s, 7 5s, 5 2s. 2 2 will be again cancelled. You are left with 22 outside. And what about inside? 10 and plus 7. Now you have to multiply 22 into 17. 17 2s are 34. 3 is carry. 17 2s are 34. 34 plus 3 is 374 centimeter square. This is your answer. The answer is 374. एरिया है तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. That is 374 centimeter square will be your answer. Okay, I think you must have understood. We have done the same thing in both the question, but the figures are totally different. In this, the hemispherical ends are inside, and in the first question, the hemispherical parts are outside. ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया. Please note it down. Now in question number 3, look at this question number 3. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट कैसा है, सिलेंडर की शेप में, और ऊपर क्या बना हुआ है, एक conical top है. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter, 2.1 meter and 4 meter. आपको क्या दे रखा है, हाइट 2.1, डायमीटर 4 मीटर. इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है. पहले हाइट लिखे है तो फर्स्ट थिंग इज हाइट, ये डायमीटर लिखा है तो सेकंड थिंग इज 4 मीटर, दैट इज योर डायमीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. स्लांट हाइट इज आल्सो गिवन. एंड आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवास विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. एंड यू आल्सो हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास. अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का है, ₹500 का है, तो आपने सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, और एरिया ऑफ कैनवास निकालने के बाद उसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है. और टेंट कैसा शेप में, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन नाउ. हाउ वी हैव टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अ टेंट. सिलेंड्रिकल पार्ट, ऊपर एक कोनिकल पार्ट, ठीक है. एंड व्हाट इज गिवन, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. हाइट कितनी दी है, पहले हाइट बोले तो 2.1 मीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड डायमीटर इज 4. अगर डायमीटर 4 है तो व्हाट अबाउट रेडियस, हाफ ऑफ 4, दैट इज 2 मीटर, मींस द रेडियस इज 2 मीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप एंड द स्लांट हाइट, दिस इज योर स्लांट हाइट. ये जो स्लांट हाइट है ये कितना आपका 2.8 मीटर है. स्लांट हाइट भी दे रखी है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है. तो 2.8 मीटर है, इधर लिख देते हैं 2.8 मीटर. दिस इज द स्लांट हाइट. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ कैनवास. तो अब इसमें एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे कैनवास नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, तो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका टोटल सरफेस एरिया. क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे भी कोई हमारा क्लॉथ यूज नहीं हो रखा, यहाँ पे भी कोई क्लॉथ नहीं यूज हो रखा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया लेंगे. तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो. तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल. एल आपको पता है कितना आपका 2.8, आर भी आपको पता है, और कर्व सरफेस सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच. तो एच भी आपको पता है, आर भी पता है. कॉमन क्या ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एल प्लस 2h. आफ्टर दिस यू नो द वैल्यूज पुट करो इसकी, ठीक है. तो पाई की जगह पे यू विल पुट 22/7. व्हाट इज आर 2, ओके. एल 2.8, बहुत ध्यान से वैल्यूज डालनी है इसमें. आफ्टर दिस एच, व्हाट इज एच 2.1, 2 into
2.1. After this 22/7 into 2, this is 2.8 plus 2 ones are 2, 2 twos are 4. This is 4.2. Add both of them, 2.8 और 4.2 को add कर दो तो ये हो जाएगा आपका 22/7 into 2. इसको ऐड करो कितना आएगा 8 और 2 10 4 5 6. This is 7.0. 7.0 can be written as 7 also. तो ये कट गया आपका. The answer is 44 meter square. आंसर नहीं है सॉरी. This is the area of canvas required. यानी 44 meter square आपको cloth required है to make this tent. अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? We also have to find the cost. यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कितना है? ₹500. हमें कितना चाहिए? 44 मीटर स्क्वायर चाहिए. तो उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹500 है. तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर में चाहिए तो कितना कॉस्ट होगा? 44 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे. 5 4s are 20, 5 4s are 20 एंड 2 22. तो ये 22 कितना हो जाएगा? ये 20 ये भी आ जाएंगे. तो 22,000 रुपीज आपका कॉस्ट पड़ जाएगा इस पूरे टेंट को लगाने के. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या किया हमने इसमें. सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की. फिगर में हमने क्या देखा? टेंट कैसा है, सिलेंडर और कौन से बना हुआ है. तो इसका हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है. तो क्या करेंगे? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे. क्योंकि इस वाले पार्ट में आपका कोई भी क्लॉथ यूज नहीं आ रहा हो रहा तो दोनों में कर्व्ड सरफेस एरिया ही ऐड करेंगे. तो इसका πrl और ये 2πrh, πr कॉमन हो गया, l + 2h हो गया. आफ्टर दिस यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड h एंड l. तो ये सब कुछ पुट करके आपके पास 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका, जो आपको कैनवास का एरिया चाहिए है. और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 500 का है. तो 44 मीटर स्क्वायर कितने का होगा? तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 44 विथ 500 एंड द आंसर इज 22,000 रुपीज. रुपीज में है तो आंसर आपको रुपीज में लिखना है. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. अब आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर. हाइट 2.4, डायमीटर इज 1.4. अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट. और उसमें से हमें कोनिकल कैविटी हमने सिलेंडर में से निकाल दी है. तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमें इसका भी सरफेस एरिया निकालना है. तो इसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो प्लीज. यस हियर यहाँ पे एक आपका सिलेंडर है. ओके और इसका हुज हाइट इज 2.4. हाइट कितना दे रखा है आपको? 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है. डायमीटर क्या दिया है? डायमीटर प्लीज, डायमीटर नोटेड डाउन. डायमीटर दिया है तो डायमीटर अगर 1.4 है तो व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर. इफ यू डिवाइड 1.4 by 2 यू विल गेट 0.7 सेंटीमीटर. मींस इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर है. और इसमें से एक कोनिकल कैविटी जो है होलोड आउट है. इसमें से हमने ये कोनिकल पार्ट जो है इसको हमने रिमूव कर दिया है. वी हैव रिमूव दिस कोनिकल पार्ट. हमने इसको होलो कर दिया है. दिस पार्ट इज रिमूव. ठीक है. और ये जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट इट इज सेम एज द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट. मतलब इसकी हाइट भी वही है जो कि सिलेंडर की हाइट है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज ऑल्सो 2.4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द होलो कोनिकल कैविटी की जो हाइट है दैट इज ऑल्सो 2.4 सेंटीमीटर. आपको इसका क्या निकाला है? सरफेस एरिया निकाला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो सबसे पहले अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सरफेस एरिया उस चीज का निकालते हैं जो चीज आप देख पा रहे हो या जिस चीज को आप पेंट कर सकते हो. आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर सकते हो. वो है यस दिस इज होलो. इसको नहीं पेंट कर सकते. Yes, you can paint this part, that is curved surface area of this. You can paint. It means इसका एरिया निकालना पड़ेगा. And you can also paint the base region. Base region को भी पेंट कर सकते हो. तो अब इसमें सरफेस एरिया का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना पड़ेगा. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना पड़ेगा. हमें एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा. तो 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है.
तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है कर्व्ड सरफेस सिलेंडर? क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल, आर है, एल लापता है, एल निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये सब कुछ निकालना पड़ेगा और हमें पता है कि ये हमारा 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, कोन का होता है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस कैसा आपका इसका सर्कुलर बेस है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसमें हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ है कि नहीं। बिफोर वी पुट द वैल्यूज वी शुड नो वेदर वी हैव ऑल द थिंग्स आर नॉट विद अस। तो हमारे पास आर है, एच है, आर है, एल नहीं है, तो एल मतलब स्लैंट हाइट नहीं है, तो सबसे पहले हम एल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब लिखोगे नाउ एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो आर कितना है आपका, व्हाट इज आर 0.7 का स्क्वायर है, एंड व्हाट इज एच सेम एज सिलेंड्रिकल हाइट 2.4 स्क्वायर, दिस इज 0.49 एंड दिस इज 5.76 स्क्वायर। अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा और एल हमारा कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ गया हाइट सॉरी स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई है 2.5। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। आफ्टर दिस वी हैव टू डू द नेक्स्ट पार्ट। इसका आगे जो पार्ट करेंगे फिगर में इरेज कर रही हूँ, मैंने सब कुछ लिख लिया, मेरे पास क्या क्या सब कुछ है वहां पर, आर भी है मेरे पास एंड वी हैव एच ऑल्सो, नाउ वी हैव एल ऑल्सो। ओके, आफ्टर दिस ये कर लो अपना, पुट करो यहाँ पे। नाउ ये आपका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं सॉलिड का, तो वी आर यूजिंग दीज लाइंस। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया में इसमें ये मैं फिर से लिख रही हूँ, इधर स्पेस कम है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, आई एम राइटिंग इट अगेन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे, यस कैन यू टेक कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हो पाई, यस पाई 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 सब में है। आर, हाँ जी आर इधर है, आर इधर भी है, आर इधर भी है। एल नो, एल नहीं ले सकते, यहाँ पर है यहाँ पे नहीं है। एच भी नहीं ले सकते, एच यहाँ पर है बाकी में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं पाई आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये 2h बच गया, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे एक आर बच गया। अब उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करोगे, पाई की जगह पे 22/7 एंड आर आपका कितना है 1.4 डायमीटर था, तो रेडियस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0.7 और फिर उसके बाद ब्रैकेट, व्हाट इज एच, एच इज 2.4, एल कितना आया 2.5 एंड व्हाट इज आर अगेन 0.7। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट हटा के हम 10 लगा सकते हैं, 7 से 7 कट गया, दिस इज 22/10 और दिस इज 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इन सबको प्लस करो, yes what are you getting 8 plus 5 13 plus 7 20 and this is 4 5 6 and 2 8, this is 8.0, you can also write it 8। तो ये कितना हो गया आपका 8 2 जा 176/10 which is equal to 17.6। इसमें बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, it means you can write 17.6 as 18 centimeter square। So this is your answer। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लो हमने क्या क्या किया है। इसमें हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना था, एक सिलेंड्रिकल पार्ट था जिसमें से हमने कोनिकल कैविटी को निकाल दिया और इसका सरफेस एरिया निकालना था। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा कोन का, प्लस एरिया ऑफ बेस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला बेस हमारा गायब हो गया क्योंकि हमने इसको होलो कर दिया, नीचे वाला बेस आपका आएगा। सब कुछ इसमें पुट करोगे 2 पाई आर एच, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर। एल आपके पास नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पाई आर एच, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो 2h l प्लस आर आ गया, 7 7 कट गया आपका, सब वैल्यूज पुट कर दो।
इन सबको सॉल्व करके यू आर गेटिंग 8, 22 by 10 into 8 which is equal to 176 by 10 and 176 by 10 can be written as 17.6 which is approximately equal to 18 centimeter square and this is your answer. And this was our 7th mensuration problem, 7th part. और जो next है we have completed with this chapter. Today we have completed with this chapter. In the next videos I will be doing your chapter number 2, that is polynomials. Okay, thank you.